I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got.
one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything scatter. Right? Right now, man, active. Down with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me now. Without the slackness, active style and pattern, that's a man there. Active. 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 One live life massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out, those days get active. 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 Now. Clocks on the each side, bad bitch on each side. Big split, chillin' on the beach side. Run things where you feel like. Cake big, have a carve out the peace line. Freestyle now, millions for each line. Too cool, when I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man, active. Gone with the game like a bandit. Me bring the flame like a mattress. Let's me know. But don't the slackness active. Stand up and tell us I'm a there. Active. 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 One live like massive. Talking with an apple brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out, those days get active. 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 I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river stays too much. I'm trying to let go of us, but the truth is that you really don't want us. चार्जअप करते हुए जाते हैं, but this shot was way ahead. यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी एक सेंट नहीं थी. आपकी रोमांटिक पैंडा यहाँ पे पीक लेते, gets the kill, लेकिन it will not be enough and any kind of beneficial for team ForGlory except the fact that थोड़ी सी इकॉनमी, हल्की सी इकॉनमी डैमेज की होनी है. RGW has the bomb plotted, साइड कवर्ड है उनके पास, प्लेयर्स हर एंगल को देख रहे हैं और अब बॉम्ब के यहाँ पे फटने का भी टाइम आ चुका है, which will mean this team will just try to run away as well. एक प्ले को स्पॉट किया जाता है वीटा की साइड से, gets a headshot connected, going to be romantic partner जिन्होंने शॉट पे किल ली थी. Now they're just going to be running away. इनके पास 8 राउंड्स आ जाएंगे and they are off to a great start. And next round will be obviously at the same time हमारे पास एक full bite होगा दोनों sides की तरफ से. Team ForGlory, unfortunately they have not been able to do a lot on this map, at something at all in this map. एक ही round ले पाए हैं, that was also a close call, लेकिन उसके अलावा Mirage has been a one-sided affair. बिल्कुल आदि, मिराज अभी तक जिस तरह नज़र आ रहा है, इट्स अ कम्प्लीटली वन साइडेड अफेयर राइट नाउ. टीम ForGlory ये पॉज मैं कहूँगा कि उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. कभी कभार पॉज से आप सिर्फ दूसरी टीम की मोमेंटम भी ब्रेक कर सकते हैं. आप जब व्हेन यू प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक, एक किस्म का फ्लो इंगेज हो जाता है आपकी एम में, आपके मैकेनिक्स में और आपकी जनरली स्ट्रेटजीज में भी. तो कभी भी एक काउंटर स्ट्राइक की गेम, यू नो, इट्स नेवर टू अर्ली टू बल्कि सॉरी, इट इज़ ऑलवेज टू अर्ली टू कॉल इट. 8-1 की स्कोर लाइन से हमने बहुत इनक्रेडिबल कमबैक्स देखे हुए हैं. तो टीम ForGlory, दे आर नॉट आउट ऑफ इट येट, लेकिन समथिंग हैज़ टू चेंज. कुछ ड्रास्टिक चीज़ उन्हें चेंज करनी पड़ेगी. टीम ForGlory
जिस तरीके से कैच आउट हो रहे हैं आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स, मैं कहूँगा कुछ स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ कर रहे हैं, उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। देर प्लेइंग गुड क्लासिक काउंटर स्ट्राइक एंड आरजीडब्ल्यू नीड्स टू फिगर आउट कि वो इस चीज़ को कैसे काउंटर, सॉरी टीम फॉर ग्लोरी नीड्स टू फिगर आउट कि वो सिटी साइड के ऊपर इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे। अब तो ज़्यादा राउंड्स भी नहीं रिमेनिंग, इस राउंड को मिला के आई थिंक 3 और राउंड्स रह जाएंगे इसके बाद, तो वक्त बहुत कम है फॉर ग्लोरी के पास, और टास्क द माउंटेन इज वेरी ह्यूज दैट दे हैव टू क्लाइंब। Sounds like my work day or my life as well. सफ़र बहुत लंबा है, पहाड़ चढ़ना है और पता नहीं क्या क्या ली, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली टीम ForGlory इज इन दैट पोजीशन एज वेल। तो यू राइट अबाउट द फैक्ट एज वेल कि ये इनको काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी आगे जाना है। एक और चीज़ दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड एज वेल कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MR13 है, 5 or more rounds and RGW will win. और मसला एक और on the CT side as well कि you cannot catch a break in terms of your economy. तो while they chose this site, मसला यही होता है कि if you lose one round, you have to save in the next one. RGW can somewhat work with an AK and some gillies, लेकिन obviously उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। तो टीम फॉर ग्लोरी is also sad with the fact कि तो MR13 और इकोनॉमी CT की वैसे थोड़ी सी टाइटन होती है, एंड आधे राउंड्स तो हारे हैं और आधे राउंड्स इकोनॉमी की वजह से। बट हियर कम्स द पुश एज वेल, मैच रिज्यूम हो चुका है, मिड के ऊपर सिर्फ डॉट्स कंटेस्ट करते हुए आ रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स दे आर लाइनिंग अप आउटसाइड A एंड वन इज लर्किंग टुवर्ड्स B। बिल्कुल आजी, बी साइड इस वक्त आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स ने खाली छोड़ दिया और अब एक कन्वेंशनल सेटअप नजर आया टीम फॉर ग्लोरी की तरफ से। 3 प्लेयर्स मिड के ऊपर शॉट के ऊपर पहली किल लेने में कामयाब, डॉट स्मोक के कवर के अंदर मौजूद, कंप्लीटली ब्लाइंडेड। किया की तरफ से फ्लैश आता है, क्रिप्टॉन किल लेने में कामयाब, और अब ए साइड के बाहर सेटअप किया जा रहा है। तो आई थिंक यही टाइम है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि अब सीटीज अपनी पोजीशन में आ चुके हैं। टीम फॉर ग्लोरी मौजूद ए साइड के ऊपर 3v3 यहाँ पे होगा, जो कि हमेशा सीटीज को ज़्यादा फेवर करता है। उसामा कि ये मोलोटॉफ किया को यहाँ से भगाएगा और साथ ही साथ ग्रेनेड भी फेंका जाता है। किया को अपनी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ती है, मोजरी पहले किल लेने में कामयाब और साथ ही साथ फ्लैश आ जाता है, लेकिन किया की पोजीशनिंग बहुत अच्छी, और अब टीम फॉर ग्लोरी एक और राउंड सिक्योर करने में कामयाब इस काउंटर टेररिस्ट साइड के ऊपर। सो बेहतरीन गेम प्ले आरजी, आई थिंक द पावर्स केम इन क्लच फॉर देम। उन्होंने कुछ अच्छी स्ट्रैट्स वहाँ पे डिस्कस की। आई थिंक पहली दफ़ा हमने देखा कि 3 प्लेयर्स को उन्होंने कन्वेंशनली मिराज के ऊपर जो सेटअप होता है, आपका जो बी प्लेयर शॉट के ऊपर आकर सपोर्ट करता है, एक ए प्लेयर कनेक्टर से आता है और फिर विंडो के अंदर मौजूद प्लेयर आपके पास ऑलरेडी होता है। तो वो चीज़ करते हुए यहाँ पे आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स को टेक आउट करने में कामयाब हुए, लेकिन अब दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है। मिड का कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है, माइज्यूनिक अंडर पास पहुंच चुके हैं, हो चुका है मिड का कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है, माइज्यूनिक अंडर पास पहुंच चुके हैं। 2 प्लेयर्स यहाँ पर कंप्लीट प्रेशर आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स की तरफ से इस वक्त मिड के ऊपर। एग्जैक्टली, रोमांटिक पांडा एक बहुत अच्छे तरीके से फिगर आउट भी कर लेते हैं कि प्लेयर अंडर पास की तरफ से आता है, एंड एज सून एज दैट मोलोटॉव फेडेड अवे, उसी के ऊपर पुश करते हुए नजर आएंगे, एंड ही जस्ट रन ऑफ टू द शॉट। और नाउ उनके पास जो एडवांटेज था उसको कहीं भी लूज नहीं करना चाहिए। टुक सम शॉट टू द बॉडी, नथिंग कंसर्निंग फॉर हिज साइड, इज प्लेइंग विद एन ऑफ, लेकिन साथ साथ देखा जाए अभी भी एक कंट्रोल रहता है। डॉट स्मोक एक तरफ इंतजार कर, रॉबिन हुड स्मोक की दूसरी तरफ इंतजार किया जा रहा है। व्हेन विल दैट स्मोक फेड अवे, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन? एंड लुक एट दैट, डॉट्स जिस पोजीशन के अंदर आए थे विंडो से होते वो बहुत अच्छी, बट किया वहीं पे उनको ट्रेड आउट भी कर देते हैं। यहाँ पे तो ए स्पॉट कहते हैं शो प्लेयर जो शॉट की तरफ जा रहे थे, बट डॉट्स अब थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहते हैं ए को। ही गॉट एन एडवांटेज, लेकिन टीम फॉर ग्लोरी दे आर प्लेइंग वंडरफुली बिहाइंड दोस एंगल्स जो इतने आराम से आप नहीं जाके टेस्ट कर सकते हैं। एंड किया टेक्स अ बिग डॉट्स, अनफॉर्चुनेटली वहां पे ए मेन की तरफ देख रहे थे। बिल्कुल, और अब आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स के लिए राउंड काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बी साइड के ऊपर बी साइड की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, और यही इनके लिए अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। माइज्यूनिक ऐप्स के अंदर काफ़ी करीब होंगे, लेकिन रोमांटिक पांडा इन ऐप्स का पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। शॉट की तरफ से उनकी टीम में रोटेट करते हुए आ रहे हैं और उसामा को टेक आउट कर लेंगे। एमएन अब वहाँ पे गिर जाते हैं, और अब रोमांटिक पांडा को भी अपनी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ती है। ऑप के साथ एक किल लेने में कामयाब, लेकिन साथ ही साथ उनको किल कर दी जाएगा, ट्रेड आउट कर लिया जाएगा और बॉम्ब प्लांट करना पड़ेगा, जो कि ड्रॉप किया जा चुका है। क्या टाइम है? टाइम नहीं रहा वहाँ पे प्लांट के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे राउंड खत्म होगा। उनके ऊपर किल लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होती। तो क्या एंड पे उनको टेक आउट कर लिया जाएगा। टीम फॉर ग्लोरी
अब फाइनली इस गेम के अंदर कुछ मोमेंटम गेन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 2 राउंड सिक्योर करते हुए ये फाइनल राउंड भी सिक्योर करना उनके लिए बहुत अहम हो चुका है इस पॉइंट पे, क्योंकि 8-3 की स्कोर लाइन हो या हो उससे बहुत बेहतर 8-4 की स्कोर लाइन और अप मोमेंटम भी, लेकिन साथ साथ हमारे पास हाफ स्विच हो जाएगा। तो हाफ का फाइनल राउंड आ रहा है। अब देखना पड़ेगा आरजीडब्ल्यू किस तरह एडजस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आरजीडब्ल्यू बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक बी रश उनकी तरफ से लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी यूटिलिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और टीम फॉर ग्लोरी बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिप्टॉन को पहली किल मिल जाती है और साथ ही साथ विंडो से भागने में कामयाब। ही इज अ स्मूथ क्रिमिनल, लेकिन माइज यूनिक किल लेने में कामयाब। एमएन वहां पे मौजूद और विंडो की तरफ से स्मोक सपोर्ट आ चुका है। एसएमजी ड्यू ले लेती है, स्विच कर लेते हैं ऑफ पे और वाइटा एक और किल लेने में कामयाब। 1v2 सिचुएशन, मार्केट के अंदर एक प्लेयर मौजूद है। वाइटा यहाँ पे रोटेशन कैच आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं पहले एक प्लेयर रोटेट कर चुके हैं। रोमांटिक पांडा वहां पे मौजूद है। 1v2 वाइटा क्या टाइमिंग, क्या टाइमिंग वहां पे नजर आई। रोमांटिक पांडा की तरफ से वहां पे किल लेने में कामयाब और बेहतरीन राउंड यहाँ पे टीम फॉर ग्लोरी की तरफ से। और आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स बेहतरीन हाफ एक बहुत अच्छी एडवांटेज के साथ यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं अपनी टी साइड। अली, इट इज अनफॉर्चुनेट थिंग एज वेल। आप एक एंगल को 10 सेकंड तक देते रहे, द मोमेंट यू लुक अवे इज द मोमेंट द अदर गाय स्पीक, एंड दिस इज हैज नॉट जस्ट हैपेंड अ मिलियन टाइम्स। ये और मिलियन टाइम्स भी होता हुआ नजर आएगा। बट ऑब्वियसली ग्रेट स्टार्ट फॉर द टीम आरजीडब्ल्यू, एक अच्छा हाफ लेके जाते हैं। बट अब can Team for Glory take it back from RGW Esports on the terrorist side? A is going to be hit, or Team RGW, fortunately for them, the gamble worked. उन्होंने 3 प्लेयर्स एक तरफ मौजूद है, एक प्लेयर स्टेज खेल रहा है, 1 player is playing under Palace, is waiting for that, and shots coming in को अंदाजा हो चुका है, रोटेशंस भी आना शुरू हुए थे। उसामा को पहली किल भी मिल जाएगी, उसामा को दूसरी किल भी मिल जाएगी, and he's just too good with that. Kia tries to take it back with 2 kills on his side, लेकिन the damage has been done. Team for Glory को यहाँ से ये चीज लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, but Kia रुक नहीं रहे, तीसरी किल हेडशॉट के साथ अपने नाम कर जाएंगे। बिल्कुल किया खेल लेने में कामयाब और यूएसपी उठाई जा चुकी है उनकी तरफ से, जो कि काफी डेंजरस पिस्टल होती है। किया एक और किल ले लेते हैं 1v1 सिचुएशन, लेकिन माइस्यूनिक आकर इसको क्लोज आउट कर लेते हैं। किया ने बहुत कोशिश की टीम फॉर ग्लोरी को एक बहुत अहम पिस्टल राउंड जिताने की, लेकिन आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स का सेटअप वहां पे बहुत अच्छा मालूम हुआ, तो उसकी वजह से राउंड जीतने में कामयाब। और अब आरजीडब्ल्यू इस एडवांटेज के साथ सिटी के ऊपर पहली गन्स भी अपग्रेड करने में कामयाब होंगे। तो टीम फॉर ग्लोरी एक इको राउंड करते हुए और स्कोर लाइन तो काफ़ी सेफ टू से कि यहाँ पे 10-4 होते हुए हमें नज़र आने लगी है। Exactly, यहाँ पे दो काफी प्लेयर्स को मिड साइड पे नजर भी आ जाएंगे। उसामा टेक्स अ पीक एज वेल, गेट्स बैक, कवर में आने की कोशिश करेंगे, बहुत वाइड पीक लेते हुए नजर आएंगे। माइट जस्ट टेक अ लॉट ऑफ डैमेज, लेकिन उनको सपोर्ट करने लगे बाकी सारी टीम भी आ जाएगी। इट्स अ फ्री फॉर ऑल हैपनिंग ऑन द मिड साइड, जो कि टीम आरजीडब्ल्यू जीतते हुए नजर आ रही है। किया फिर थोड़ा सा डैमेज डील करने की कोशिश करते हैं लास्ट राउंड की तरह विद अ हेडशॉट, लेकिन वो कितना कर पाएंगे अकेला प्लेयर, कितनी बड़ी कंधे हैं जो अपनी पूरी टीम को कैरी कर सकते हैं, and we can see that in the score line as well। लेकिन अली free for all मुझे बहुत पसंद आया जो अभी हुआ था। बिल्कुल आदि एन ओल्ड स्कूल फ्री फॉर ऑल आउट एट मिड ग्लॉक्स, काफ़ी एडवांटेजेस गन्स यहाँ पे फमास और MP9 का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो एक मज़े की चीज़ नहीं थी। लेकिन टीम फॉर ग्लोरी अब अपना पहला बाय राउंड यहाँ पे करते हुए गन्स मौजूद हैं और अब तो उनके पास एडवांटेज है आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स के बामुकाबले। तो देखना पड़ेगा कि क्या टीम फॉर ग्लोरी इस एडवांटेज को कन्वर्ट कर पाते हैं, या दूसरी साइड पे आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स ये गेम हमें 11 राउंड्स के ऊपर अपनी एडवांटेज लेकर जाते हुए नजर आएंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है फॉर ग्लोरी की तरफ से मिड के ऊपर, और आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे इस मिड प्रेशर के लिए। Exactly. It's not going to be easy as well। एमन अंडर पास से बाहर निकलते हैं, there is no player on towards the side of a mid, और यहाँ पे काफी तक कंट्रोल रहता है। दूसरी तरफ विंडो को भी क्लियर कर दिया गया, जो प्ले शॉट की तरफ मौजूद है। स्काउट इज प्लेइंग फ्रॉम द नॉट इन अग्रेसिव पोजीशन, इट वाज जस्ट टेकिंग होपिंग कोई क्रॉस करेगा तब नजर आ जाएगा। टेक्स अ बिट ऑफ डैमेज मोलोटॉव की वजह से, बट हैज टू गो बैक। डॉट्स अब यहाँ पे कनेक्टर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसामा लैडर रूम के बाहर रहेंगे, दैट्स अ ग्रेट पोजीशन फॉर हिम, बिकॉज ये इन्होंने डैमेज कर दिया तो मिड बहुत हद तक एक इशू बन सकता है उनके लिए, बाकी टीम्स के लिए। इज स्टिल बीइंग होल्डेड। अब बाकी प्लेयर्स उसकी वजह ही रहते हैं, एक ही पीछे एक ही तरफ सेंटर होना चाहते हैं, एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर दैट।
बिल्कुल आजी, और काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरा, क्रिप्टॉन को ओपनिंग किल मिल जाती है लेकिन साथ ही साथ उसामा रिस्पॉन्ड बैक करने में कामयाब। 30 सेकंड साइड की तरफ हिट करना पड़ेगा और ए साइड का इंतखाब किया जाता है, जो कि यहाँ पे बेहतरीन डिसीजन नज़र आ रही है बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेयर मौजूद है RGW ई स्पोर्ट्स की तरफ से। 20 सेकंड के अंदर क्रिप्टॉन के पास बहुत अच्छी पोजीशन है कनेक्टर के अंदर, पहले किल लेने में कामयाब, लेकिन अब उनकी टीममेट को पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई मौजूद है लो HP। और अब RGW ई स्पोर्ट्स क्या यहाँ पे सेव करते हैं? नहीं, कॉल रीटेक की है। उनके पास पोजीशनिंग अच्छी है, कनेक्टर उनका सिक्योर है। माइजोनिक पहली किल लेने में कामयाब, साथ ही साथ दूसरी किल भी ले जाते हैं और 3v3 को 1v1 कन्वर्ट करने में कामयाब, और अब 2v0 हो चुका है बिकॉज RGW esports की तरफ से एक बेहतरीन रीटेक देखने को मिला और साथ ही साथ उनकी गन्स भी अपग्रेड हो जाएंगी। एक AK उठाने में कामयाब और बल्कि 2 AK सिक्योर कर लेंगे। टीम फॉर ग्लोरी एक बहुत ही जरूरी गन राउंड यहाँ पे हारते हुए नजर आए। विद द फैक्ट कि उनको इस साइड का पिस्टल राउंड भी जीतना चाहिए, दे लॉस्ट द पिस्टल राउंड, द पोस्ट पिस्टल राउंड एंड द गन राउंड एज वेल। अली, ये एक सैड स्टोरी रहती है फॉर टीम फॉर ग्लोरी। RGW इज ऑन देयर वे टू अ विक्ट्री इन द फर्स्ट मैप एंड दे हैव अ मोमेंटम ऑफ ट्रेन जिनको रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। उस ट्रेन को बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लगी थी, बट दैट वाज जस्ट अ टाइनी स्टॉप जो उन्होंने वापस यहाँ पे शुरू कर दिया है। विद द प्लेयर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द मिड साइड एज वेल, टेक्स अ लॉट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। वीटा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे हेडशॉट की वजह से, और लेकिन डॉट्स यही कोशिश करते हैं काफी तक डैमेज दूसरे प्लेयर को भी दे दिया जाए, लेकिन एक ही शॉट कनेक्ट कर पाती है। नाउ टीम फॉर ग्लोरी दे हैव द एडवांटेज, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फील इट आउट। दो प्लेयर्स मिड की तरफ से आ रहे हैं, ट्राइंग टू गेट्स कनेक्टेड टुवर्ड्स द कनेक्टर एंड दैट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट पुश, और एक का पूरा जब कंट्रोल इनके पास आ सकता है। बिल्कुल, रॉबिन हुड एक बहुत जरूरी किल लेने में कामयाब, और अब डॉट्स को अकेले यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहली किल लेने में कामयाब और तीसरे प्लेयर को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर लेते हैं RGW esports। शुरू में तो मुझे 2 किल पहले तक तो मुझे राउंड हारा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन डॉट्स ने RGW को बहुत अच्छी पोजीशन दे दी है। दे कैन क्लाइम बैक इनटू दिस राउंड नाउ। पूरे मैप का कंट्रोल तो नहीं लूज किया वो, सामा बहुत अच्छी पोजीशन में, उन्हें पता सिटी तक कोई प्लेयर रोटेट करके नहीं आया, जो उन्हें बहुत अच्छी एडवांटेज देता है। सारे के सारे टीज अभी ए मेन सैंडविच एरिया और यहाँ पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो रोटेशन आ रही है। 2 AKs वर्सेस टीम फॉर ग्लोरीज, 1 गलील एंड 2 AKs। वहाँ पे यूटिलिटी भी मौजूद है। माइजूनिक एक बहुत अच्छा एंगल कट ऑफ कर लेते हैं, जंप करते हैं, एक किल लेने में कामयाब। माइजूनिक एक दफा फिर से सैंडविच के अंदर एक प्लेयर मौजूद है और अब डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है इन द स्मोक। क्या उनको किल कर पाएंगे? क्रिप्टॉन मारने में कामयाब होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसामा इसको ट्रेड आउट कर लेंगे और बॉम्ब डिफ्यूज आ जाएगा। RGW esports, टीम फॉर ग्लोरी हैड नो वे दे वुड लूज दिस राउंड। RGW के पास भी कोई चांस नहीं था इस राउंड को जीतने का, लेकिन डॉट्स के उस एक प्ले ने एक केव की तरफ RGW को एक बहुत अच्छा कमबैक मैकेनिक दे दिया। It gave them the start and it gave them the incentive for comeback. लेकिन the last two players जो रहते थे, खासतौर पे उसामा, the way the utility was being used and the angles were being cut off, that was exceptional. और खासतौर पे Molotov से वो 2 angles clear करना, that was absolutely great. और team for RGW को incentive दे दिया जाता है, but Dots यहाँ push करते नजर आते हैं, एक प्लेयर को eliminate करते हैं, मैं उनको trade out जरूर करना चाहते हैं, but shots उसामा का push आता है, उनको eliminate कर दिया जाएगा, but it's just not a dominance from either side. Trades left and right होते हैं, leaving 3v3, but unfortunately टीम फॉर ग्लोरी की एक प्लेयर की हेल्थ काफी कम है, one shot to the body and he's done. बिल्कुल आदि, और अब माइजियोनिक माइट बी टेस्टेड ऑन द बी साइड। हमेशा ए के ऊपर आकर किल्स लेने में तो कामयाब हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब रोटेशन आ रही हैं टीज की तरफ से। किया को स्पॉट आउट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल उनके नीचे से गुजर जाते हैं और ये एंगल होल्ड करते हुए, लेकिन यहाँ पे उन्हें प्लेयर्स फौरन नजर आएंगे। किया अपनी बैक टर्न करते हुए, क्योंकि वहाँ पे पहले कोई प्लेयर मौजूद नहीं थे, और जंप करके आखिरी प्लेयर को मारने की कोशिश करी जा रही है एंड दैट एची ग्रेनेड विल फॉल अ लिटिल शॉर्ट। और माइजियोनिक स्मोक डालते हुए ताकि एमन को लगे वो वापस रोटेट कर चुके हैं, लेकिन अपनी पोजीशन उन्होंने एक दफ़ा फिर से होल्ड की हुई है। एमन यहाँ पे फंस चुके हैं 2 प्लेयर्स के बीच में, ग्रेनेड उनको बहुत लो कर देगा और साथ ही साथ वीटा उनको एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या बेहतरीन गेम हमें देखने को मिली। पहली गेम RGW esports की तरफ से आरती, वही बात हम कर रहे थे, मिराज एक इतना कॉमनली प्लेड मैप है कि मिराज का इंतखाब करना आपके लिए काफ़ी परेशान कुन साबित हो सकता है, बिकॉज वही बात हम कहते हैं कि कम्युनिटी का नया डस्ट 2 है मिराज, और RGW esports ने भी आज यही साबित किया कि उन्हें मिराज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
Definitely, and we clearly saw that. जहाँ पे whether it's T side or CT side, they had dominance on the both part. Executions हमने देखी, mid contest हमने multiple sides के ऊपर देखा था. We had great plays coming in, some individual वो भी नजर आई थी, performance भी नजर आई थी. But once you map it out on all the rounds, you could say कि every player had the opportunity to perform and every player performed as well. तो काफी चीजों में डिफरेंस नजर भी आता था. इट वाज टू द माइंडसेट एज वेल द वे मिड वाज कंटेस्टेड is also a question mark है किस तक contest कर रहे थे मिड को. sometime it was left alone and the rounds जो कि टीम फॉर ग्लोरी जीती थी was the round जहां पे मिड के ऊपर इनको कुछ kills मिल जाती थी. either it was an op, either it was a flash and a peek from CT side. that was the main question. और वही बात होती थी. अनफॉर्चुनेटली सम मिस्टेक, जैसे वो डॉट्स का 1v2 पुल ऑफ करना, तीसरे प्लेयर को बहुत डैमेज डील करना. द यूज ऑफ यूटिलिटी वाज आल्सो समथिंग दैट वाज बीइंग क्वेश्चनेबल कि यूटिलिटी का यूजेज किस तरह का आता था. बट एंड उसके साथ साथ आई थिंक अली एक और चीज थी कि some advantages round was also being thrown. That was a question mark whether this should have happened or not. लेकिन guys, we'll take a short break. We'll be right back for the game number 2. तो कहीं ना जाएगा. We'll be right back. Let's do this, Abu Dhabi! Let's do this, Abu Dhabi! I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that look in your eyes.
Best to give me your loyalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.
be calling me royalty. Yeah, I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Why do I still have hope? So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything I got. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद अरीना ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में। आज आरजी हमारे पास क्या एक्साइटिंग गेम हो रही है और क्या एक्साइटिंग मैच है पे आरजीडब्ल्यू और टीम फॉर ग्लोरी के बीच में। लेकिन एक्साइटमेंट एक तरफ, लेकिन जो डोमिनेशन इस वक्त जिस डोमिनेशन का मुजाहरा कर रही है आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स, वो एक तरफ जो कंपटीशन में एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहला मैप इंतखाब किया गया मिराज का, और मिराज के ऊपर हमें उस तरीके से एक मैं कहूँगा कि ज़्यादा वन साइडेड अफेयर ही नज़र आया अभी तक। आरजीडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स एक काफ़ी डोमिनेंट स्कोर लाइन के साथ पहली गेम क्लोज आउट करते हुए नज़र आई थी, और
हमने देखा था कि टेररिस्ट साइट के ऊपर जिस तरीके से वो खेल रही थी, जो गेम प्लान उनके पास मौजूद था उसको काउंटर करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो रहा था टीम फॉर ग्लोरी की तरफ से। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि टीम फॉर ग्लोरी कैसे इस दूसरे मैप पे जो कि अनूबस खेला जाएगा वहाँ पे अपने आप को क्या एडजस्ट कर पाते हैं, अपने गेम प्लान को एडजस्ट कर पाते हैं, या दूसरा मैप भी हमारे पास कुछ पहले के ही मुताबिक चलता हुआ नजर आएगा। Obviously, Ali, it was exciting for Team Road to RGW the way they played. Obviously, काफ़ी चीज़ों को improve करते हुए नजर आया। हर तरह player की contribution हमने discuss की, strategy discuss की, their impact in the game number one, and the way they contested every single point of the round, वो हमने चीज़ें discuss की, and we saw a completely different and evolved team. As for Road to Glory, उनके लिए I think sorry, as for I'm sorry, मैं नाम भूल गया था. Is it Road to Glory? Road for Glory. Sorry, Team for Glory. RG, Yes, I got Team it. for Glory and Team for, RGW Esports. Team for, yes, I think I Road to Glory कहना शुरू कर दिया था. It was like, okay, it's my bad. But Team for Glory, there are obviously some huge concerns for their side as well. जो चीज़ें हमने नजर भी आई थी, to a point where it starts with the bare minimum, Ali, के whether it is an advantageous round or not for you and whether you can take it to the win. There were some rounds जहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमें एक अच्छी पोजीशन पे इनको गेम rounds मिले थे. They should have by all means won that round and that could have been the first starting point. लेकिन highlights हमारे सामने आ चुकी हैं कुछ देर में and we will see the highlights of the rounds and match के उस moments में कहा हुआ where they could have turned it all around as well and where they did turn it around. बिल्कुल आरजी, हमारे पास मैं कहूँगा कि वही बात है कि बहुत वन साइडेड अफेयर था। RGW Esports टीम फॉर ग्लोरी के तमाम गेम प्लान को डिसमेंटल करते हुए नज़र आ रही है हमें। पूरे राउंड्स के अंदर जिस तरीके से गेम खेली गई, ड्यूल्स जिस तरीके से लिए गए, वहाँ पे RGW Esports बस डोमिनेट ही कर रही थी थ्रू आउट। मैं कहूँगा टीम फॉर ग्लोरी कुछ अच्छे आइडियाज़ हमें नज़र आए पहले हाफ के अंदर भी, एंड पे 4 राउंड सिक्योर करने में कामयाब हुए, लेकिन डॉट्स की तरफ से इस टाइप के प्लेज बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे और अनएक्सेप्टेबल भी है। मैं कहूँगा कि जब आप काउंटर स्ट्राइक इस टॉप लेवल के ऊपर compete करते हुए नज़र आते हैं तो इस तरह के मूव्स जहाँ पे आपके पास इतनी बड़ी एडवांटेज हो एक राउंड के अंदर और आप एक प्लेयर को मैं कहूँ कि 3 अपने प्लेयर्स टेक आउट करने की इजाज़त दे दें कि वो इतनी आसानी से 2 को मार लेते हैं, 1 को डैमेज दे देते हैं। तो इस तरह की जो एरियाज़ हैं, रफ़ एजेस हैं, मैं कहूँगा कि उनको शार्पन अप करने की ज़रूरत है और कोशिश करनी पड़ेगी कि इस तरह का मसला ना हो। तो अब अगर स्कोर बोर्ड की तरफ नज़र लगाई जाए तो हम देख सकते हैं कि कौन डोमिनेटिंग फैक्टर्स थे, और उसामा अगर देखा जाए तो RGW की तरफ से 21 किल्स लेने में कामयाब। फिर माइज़्यूनिक, वीटा और डॉट्स हमने देखा कि तीनों बहुत ही क्लच प्लेयर साबित हुए at a lot of points during the entire game, right? 16 kills 15 के ऊपर मौजूद हैं। आखिर में उनके ऑपर जो कि 7 kills के साथ, और दूसरी साइड पे किया काफ़ी हैवी लिफ्टिंग कर रहे थे। पैंडा और क्रिप्टॉन ने बड़ी कोशिश की, लेकिन MN और रॉबिन हुड मैं कहूँगा कि सर्वर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हमें नज़र आए, और इसी वजह से RGW Esports की भी ये डोमिनेटिंग स्कोर लाइन हमें नज़र आ रही है जो कि 13-4 है। तो इतना ज़्यादा एडवांटेज लेने में कामयाब हुए, और वही बात है कि फॉर ग्लोरी के चोजन मैप के ऊपर अगर वो इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आए तो फिर अब RGW Esports जब अपने मैप के ऊपर जाएंगे जो कि अनूबस है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? क्या इसी तरीके से एक मैं कहूँगा कि मैसेकर हमें देखने को मिलेगा, या मैं कहूँगा कि टीम फॉर ग्लोरी शायद अपनी मोमेंटम वापस गेन कर सकें, अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर सकें? ये चीज़ देखनी पड़ेगी। Exactly, that we still have to see कि can they do it on the way. But आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि रॉबिन हुड की तरफ से हमें कुछ भी इम्पैक्ट नजर नहीं है, even MN as well. Both of the players had their key moments जहाँ पे हमारे पास headshots नजर आए थे with the deagle, with the op, हमें कुछ kills नजर आई थी. But when you map it out across the rounds of like 17-18 rounds के ऊपर map out करो, that could have been only 2 or 3 moments where they were shining. But at the same time they had to be reliable in terms of their impact in a single round, वो हमें नजर नहीं आया था. किया की तरफ से काफ़ी किल्स हमें आई थिंक किया की भी इन टर्म्स ऑफ वी सी द स्कोर बोर्ड के वो टॉप पे नजर आते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक
he was not that impactful throughout the whole game as well. उसकी खास वजह रहती है कि उनके पास जो 5 6 kills थी वो ऑलमोस्ट एक पिस्टल राउंड में 4 kills निकाली थी, उसके बाद अगले राउंड में पोस्ट पिस्टल राउंड में he was able to get 1 or 2 kills as well. That clearly boosted his score and put him on the top. लेकिन अगर आप बाकी मैप के ऊपर करें तो he was only getting like maybe 7 kills or 8 kills across 14 or 13 rounds. So that was not a great sight to see. लेकिन मैप 8 की तरफ हम दोबारा आते हैं. We are done with Mirage map 1 जो कि पिक किया गया था टीम फॉर ग्लोरी की तरफ से. They lost on that and now we're going to go to Anubis which has been picked by team RGW. So today might be the day where you lose on the map you picked. So it could be a good thing for team for glory but देखते क्या बनता है. बिल्कुल आज देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे मैप के ऊपर कम्पीट करते हुए नज़र आते हैं. अनूबस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है अगर सेटअप की बात की जाए और जिस तरीके से साइट्स लेड आउट है, मैप का जो लेआउट है, काफ़ी डेप्थ है इस मैप के अंदर. लेकिन वही बात है एंड के ऊपर हमारे पास आप ड्यूल्स के ऊपर बात आती है, आपके पास एग्जीक्यूशन के ऊपर बात आती है और आपके गेम प्लान के ऊपर बात आती है कि आप कितना वेल कोऑर्डिनेटेड है, आपको किस तरीके से कि आपको उस चीज़ का आइडिया है कि मैप के वही चोक पॉइंट्स कहाँ पे हैं और किस तरीके से मैप को खेला जाएगा, यूटिलिटी का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें. तो RGW क्योंकि मैप इन्होंने चूज़ किया हुआ है तो सीटी के ऊपर पेस सेट करते हुए नज़र आएंगे और हमने देखा कि कैसे काफ़ी डेंजरस हो जाता है जब RGW गेम का कंट्रोल ले ले और वो लोग पेस सेट करते हुए नज़र आएँ. तो ये चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अनूबस के अंदर कैसे वो अपने गेम प्लान के साथ आते हैं और चीज़ें सेट करते हैं. तो अभी करंट स्कोर अगेन एक दफ़ा फिर से RGW Esports लीड में है, राइट. पहली गेम जीतने में कामयाब हुए हैं और टीम फॉर ग्लोरी उनके पास चांस है कि वो इस सेकंड गेम के अंदर कुछ बहुत ही इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आए. और इम्प्रेसिव तो मैं ये कहूँगा यही होगा कि अगर मैं RGW के मुकाबला वो एक क्लोज गेम हमें दिखाते हुए नज़र आए, एक ऐसा मुकाबला हो जो कि यानी कि उसमें इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी ना हो स्कोर के अंदर. और हमने देखा कि टीम फॉर ग्लोरी उनके प्लेयर्स के पास वो फायर पावर लाजमी तौर पर मौजूद है. इस तरह नहीं है कि वो प्लेयर्स मैकेनिकली RGW के प्लेयर्स से बहुत दूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि इट्स मोर ऑफ अ टीम एफर्ट. इन गेम कॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होनी पड़ेगी. जो जहाँ पे कुछ लैप्सेस हमें नज़र आ रहे थे उनको लाजमी तौर पर कवर अप करना पड़ेगा और ब्रिज अप करना पड़ेगा. और उसके साथ साथ हमें टीम फॉर ग्लोरी इस गेम के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर कम बैक करते हुए लाजमी तौर पर नज़र आ सकती है. लेकिन वही बात एस्ट्रोनॉमिकल आस्क RGW Esports एक ऐसी टीम नहीं है जो कि आपको इतने मौके देगी कि आप जो कुछ करना चाहें वहाँ पे कर सकें. आपको लड़ना पड़ेगा हर राउंड के लिए और हर किल के लिए लड़ना पड़ेगा. तो आरजी देखते हैं चंद ही लम्हात में जब हम गेम की तरफ जाएंगे कि टीम फॉर ग्लोरी कैसे RGW के मुकाबले नज़र आती है इस गेम नंबर 2 में. Definitely best of 3 का मैच है and they have to perform. They are out of the monthly finals and they have to try again. That's the way the RGW is trying again. तो वही बात है कि अगला मैप is going to be of vital importance for Team for Glory. RGW might just don't want to take it to the game number 3 इन चिट के मैप के ऊपर. They will not like the fact कि वो Team for Glory ने ही पिक किया था. तो और so this could be that. So both of the teams will be trying their level best to make sure कि कहीं ना कहीं जाके they completed in this match. Team for Glory के पास opportunity, वो chance नहीं कि तीसरे मैच में उनको जाना पड़ेगा. But obviously the second map is going to be very interesting. Anubis a relatively newer map. We have seen teams perform on it. कुछ different खेलते हुए नजर आती हैं. The way they target the sites, एक तो वो चीज़ थोड़ी सी सिमिलर होती है, बट द वे दे पोजीशन themselves वो एक बड़ी चीज़ हमने एक बहुत मेजॉरिटी डिफरेंसेस आए टीम्स के अंदर. कुछ टीम्स ने मुझे रियलाइज कर देखा भी था कि हमने एक के साइड के अंदर दे वर होल्डिंग 1 प्लेयर एंड बाकी सारे एक प्लेयर मिड की तरफ एंड व्हाइल दे वर कंटेस्टिंग 3 प्लेयर्स टुवर्ड्स 3 प्लेयर्स मिड बी की तरफ मौजूद थे. कभी कभार वो मिड पे 2 बंदे प्ले भेज देते थे, लेकिन एक के ऊपर 1 टीम वाज डूइंग आई थिंक लीविंग 1 प्लेयर व्हाइल ऑन द अदर साइड I remember a couple of teams that were leaving 1 player in A and 1 player outside A towards the T side. So that was something जो कि different and it worked out for those teams as well. So this is something that we'll see in Anubis as well, that way team position themselves on the CT side. Execution almost I think कहीं ना कहीं मैच कर जाती है. The way it is being hit, it is also very important in this map. We still have to see that. I'm excited. I think Team for Glory, they have the capacity. We saw those rounds जहाँ पे उन्होंने advantage लिया था. We saw the way they RCW कुछ round के अंदर उन लोगों ने
luck के ऊपर definitely नहीं, they contested those areas, they had a great mechanical skills and they just started doing some things. For example, वहाँ पे जाके जिस तरह उन लोगों ने फ्लैश के साथ पुश करना शुरू किया था बाउंड्रीज को, they were taking a bit more risk that was paying off as well. Maybe it doesn't pay off sometimes, but they were doing that instead of following the rigid path that they had, so they have to adapt in this one. बिल्कुल आज adoption और adapt Like that got solved. I hopefully you can see us clearly hear us as well. लेकिन टीम फॉर ग्लोरी को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है जहां पे वो 2 राउंड्स अपने नाम कर जाती हैं, and this will be an easy round as well as they have the bye. 2 kills भी मिल जाएंगे उनको अपनी तरफ से. Vitor Sosri goes down and MN just keeps going on with the third kill for the team. थोड़ा सा बहुत डैमेज लेते हैं, has to be pushing back, लेकिन उनकी सपोर्ट के रोमांटिक पैंडा बाहर आते हैं and he will keep it going with the help of Robin Hood. देखते ही देखते टीम फॉर ग्लोरी पूरी RGW को एलिमिनेट कर देंगी and 3 राउंड्स उनके पास आ चुके हैं, but it's going to be an important one. जैसे कि अब ये हमारे पास एक फुल बाय नजर आ रहा है दोनों साइड से. बिल्कुल आज फुल बाय नजर आएगा यहाँ पे RGW Esports की तरफ से, और टीम फॉर ग्लोरी अब अपने आप को साबित करते हुए इस गेम के अंदर हमारे पास पहले 3 राउंड जीतने में कामयाब, जो कि चीज़ हम ज़्यादा एक थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़, बट स्टिल वेरी प्लेजेंट नॉनदलेस. अब RGW Esports के ऊपर प्रेशर है कि उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. सामाज रॉबिन हुड के ऊपर पहली किल लेने में कामयाब, लेकिन बी साइड के ऊपर हिट आते हुए नज़र आ सकती है चंद ही लम्हात में. अभी जिस तरीके से फॉर ग्लोरी अपने आप को पोस्टर कर रही है, उससे तो यही लग रहा है. टेररिस्ट पोजीशन कर चुके रोमांटिक पैंडा वाइटा के ऊपर पहली किल लेने में भी कामयाब. डॉट्स स्प्रे करते हुए कुछ शॉट्स कनेक्ट करती हैं, कुछ नहीं करती. सोसाइटी क्रिप्टॉन के ऊपर मिड के ऊपर किल ले चुके हैं और अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन RGW Esports के पास है. मिड उनके पास क्लियर है, ए साइड के बाहर कोई प्रेशर नहीं है, और टीज लास्ट टाइम बी साइड के बाहर स्पॉट किए गए थे. Exactly, they were spotted outside B as well. और अब वहीं पे टीम्स को यहाँ पे वहाँ पे पोजीशन होते हुए नजर भी आ रहे हैं, बट किया ही इज होपिंग फॉर टू गेट सम काइंड ऑफ किल, लेकिन उनके लिए दूसरी तरफ यही बात है कि कोई पुश करते हुए नजर, दे जस्ट वेटिंग इनसाइड बी, नॉट पुश, टेकिंग गेटिंग अ बिट एग्रेसिव. लेकिन किया हैज टू गो बैक, ट्राइंग टू डिसाइड टू गो टू द वे मिड से होते हुए दे माइट जस्ट हिट द ए साइड. किया उनके लिए एक मसले की बात है, ही इज गोइंग टू बी only player that is coming from the mid side, and not just that, he has not a lot to work with. Or romantic panda fortunately for him gets a kill on sorcery, और अब A main can be easier to hit. एक ही प्लेयर A के अंदर मौजूद है, बाकी 2 प्लेयर्स B की तरफ खेल रहे हैं. मिड का भी कंट्रोल इनके पास किया आहिस्ता आहिस्ता स्लोली पुश कर रहे हैं, बट नहीं, जो A की तरफ प्लेयर मौजूद है म्यूज ने वो आगे की तरफ से खेल रहे हैं. गैस 1 kill as well, might just take a white peak. बिल्कुल पीक लेने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो कनेक्शन है वो यहाँ पे पीक ले गया है, तो थोड़ा सा वाइड स्विंग आया है I'd say from the connection that we had going there. So but yeah, you know those wide swings are very hard to deal with. जिस तरीके से bullet to the body, बुलेट टू द बॉडी, और साथ ही साथ मैं कहूँगा हेडशॉट भी ऑफ की शॉट निकलती हुई नजर आई वहाँ पे. whatever what do you call it, why the Whatever you hole? want to call it. Yeah. Honest, sorry, I'm like calling it, but yes, wide swing, peaks, whatever, but you guys were down. But I was very curious to exactly what just happened. एक तो किल उनको मिल चुकी थी. सवाल ये है कि उनको अगली किल मिली है या नहीं मिली, और was like A का पूरा कंट्रोल उनके पास आ जाता है. But even if he goes down, I will discuss the alternatives, guys. That's kind of very like a great entertainer. But even if he goes down, it's going to be a 2v2. बाकी 2 players B से rotate करेंगे. They have to fight post-plant situation, and unless he got a second kill, then it would have been an easy round for team RGW. But they to देखना पड़ेगा as soon as that issue is resolved and we can get back to the game. I'm excited for it to see कितनी whites वो हुई थी peak. बिल्कुल आरजी, और आई थिंक वही बात है कि RGW Esports वो राउंड जीतने में कामयाब, और साथ ही साथ टीम फॉर ग्लोरी के ऊपर एक और किल ले ली गई है अगले राउंड के अंदर. तो 5 प्लेयर्स यहाँ पे लूज आउट हो चुके हैं, एक प्लेयर लूज आउट हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ स्विंग आता है. क्रिप्टॉन माइज यूनिक के ऊपर किल ले तो लेते हैं, लेकिन अपनी काफ़ी ज़्यादा HP गवा बैठते हैं, और साथ ही साथ सॉइसरी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज लैंड करने में कामयाब होते हैं. लेकिन साथ ही साथ ये ऑफ जैसे ही बाहर निकलेगी तो ए साइड पे नजर आएगा कि एंट्री हो चुकी है. मोलोटॉव का इस्तेमाल आता है, जिसकी वजह से किया डबल किल लेने में कामयाब, और अब इट्स अ 2v3 रीटेक. टीम फॉर ग्लोरी बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे RGW Esports की तरफ से सामाज स्मोक के अंदर पहुँच चुके हैं, और ए साइड के ऊपर बॉम्ब नहीं प्लांट किया जाता, बल्कि इंतखाब किया जा रहा है कि बॉम्ब को बी साइड के ऊपर लेके
वीटा एक ही उठाते हैं और एक ही के साथ ही साथ रोमांटिक पांडा के ऊपर किल लेने में कामयाब। मिड के ऊपर से रोटेशन आ जाती है रॉबिन हुड की, जो कि साइड से रोटेट करके आ चुके हैं, लेकिन अब इंफॉर्मेशन सारी की सारी मौजूद है उसामा के पास। वी सीन द फायर पावर दैट ही हैज। बी साइड के ऊपर हिट की जा रही है, एक प्लेयर मिड के अंदर मौजूद है, रोटेट करते हुए उन्हें सिटी को केयरफुली देखना पड़ेगा और वहां से गुजरते हुए वो बी साइड के ऊपर इस इनके सारे के सारे प्लान रोक सकते हैं। लेकिन अभी रॉबिन हुड का मुकाबला करना पड़ेगा, सिटी के इस एंगल से अवेयर होने चाहिए। ओह लेकिन वही बात है आरजी, बहुत ज़्यादा एंगल्स होते हैं क्लियर करने को, इंसान सब कुछ नहीं क्लियर कर पाता। इसलिए इंसान को एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है, बट आई थिंक वी आर फेसिंग सम इशू अगेन, माइट जस्ट a bit of technical issue on the side and I hope it gets resolved really soon. So but you are right, the fact that he could not have looked left and right, maybe he was अगर वो थोड़े से एनिमी के अंदर होते हैं, थोड़े से उनके पास कोई मैजिक्स होते तो he could have looked at both angles at once, but unfortunately not to a great side, he looked on the wrong side. लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास RGW gonna go with the half bias. Team RGW, they're trying to get back into the A side of the team for Glory. यहाँ पे completely round जीत जाती है, 2 players रह चुके हैं, they're just gonna save the guns as they have. और वही वाली बात, एक के पास डीगल, एक के पास गन है। This was a round जो कि हमें टीम फॉर ग्लोरी की साइड पे जाता हुआ नजर भी आया, तो उसकी खास वजह ये रहती थी कि टीम फॉर ग्लोरी had economy, they had everything they needed to win this round as well, but now Team RGW, they are looking to this win. This one is going to be an extremely important round. This round will dictate how much you get in the first part of the game. इसके बाद economy नहीं होनी, इसके बाद lead बहुत बढ़ जाएगी. 1-6 looks way worse than 2-5. So let's see exactly that. और Team for Glory को भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस half के अंदर. So they need this round. They desperately need this round. एक कॉपी हमारी उठाई जाती है, तो 2 प्लेयर्स हमारे पास मिड की तरफ बी की तरफ जाते हैं, 3 प्लेयर्स बी की तरफ जाएंगे. बट उसामा काफी कंटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं. म्यूजिक यहाँ पे रॉबिन हुड को एलिमिनेट कर दिया जाएगा ए की तरफ से, and he was the only player towards the A. But look at the shots coming in. Kia थोड़ा सा aggressive होना चाहते हैं, trying to spot the player towards the B. लेकिन वहाँ पे डॉट्स एक बहुत unnecessary पीक लेते हैं, जो कि किया को एक किल दिलवा जाएगी, taking the advantage away for team for Glory. Krypton थोड़ा सा डबल डोज की तरफ आएंगे, मिड की तरफ हो, trying to spot the player as well. ऑप थोड़ी सी पीक करवाता है, लेकिन को कवर में जाना पड़ेगा वापस, because he was not ready for the shot. Romantic Panda will smoke off the entrance to the A. अब मेरे ख्याल में जाके उस ऑप को कंटेस्ट करना चाहते हैं, एंड सॉसरी, व्हाट अ शॉट टू द बॉडी, खूबसूरत तरीके से खेलते हैं और वहां पे उनको एलिमिनेट कर जाएंगे, टेकिंग द डैमेज अवे. बट फाइनली तुम्हारी तरफ से, हमारे पास क्रिप्टॉन की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉट अच्छी आती है, एंड लेट्स सी दैट. बट फॉर नाउ गाइस, एक थोड़ी सी अपडेट रहती है कि फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच ट्रल्टस इज गोना बी जॉइनिंग अस. ट्रल्टस, हाउ आर यू, हाउ डू यू फील अबाउट द मैच? स्कोर लाइन देख के मैं बिल्कुल ठीक आरजी, स्कोर लाइन देखते हुए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि टीम फॉर ग्लोरी जो है वो इतना अच्छा कर रहे हैं, कंसिडरिंग लास्ट मैच का मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उसमें RGW काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे. बट इट्स अ नाइस सरप्राइज द सेकंड मैच. डेफिनेटली आई थिंक जहाँ पे उन्होंने जिस तरह बाउंस बैक किया, डिस्पाइट द फैक्ट दे लॉस्ट, इसमें कहने से बुरे तरीके से वो हारे थे गेम नंबर 1 के अंदर. इस तरह कॉन्फिडेंस लेके आना काफ़ी अच्छी बात रहती है. बट लुक एट दैट, 1v2 M1 के पास कंट्रोल रहता है इस साइड के, और एक प्लेयर पीक लेते हैं, दूसरे प्लेयर साथ ही पीक लेते हैं, दोनों पीक लेते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर M1 टू डू एनीथिंग. काफ़ी अनफॉर्चुनेट पोजीशन में था.
लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों ने साथ पिक ली और ये हमें आरजीडब्ल्यू की तरफ से एक डेफिनेटली आई थिंक स्टिल पॉसिबल टू कम बैक, बट लुक एट दैट। अब यहाँ पे हमारे पास जो राउंड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि राउंड बहुत ज़रूरी है जीतना टीम फॉर आरजीडब्ल्यू के लिए। इस हाफ में डॉम में थोड़ा सा कुछ करने के लिए, कुछ पॉइंट्स अपने राउंड्स अपने नाम करने के लिए, वही राउंड हमें जीतते हुए नजर भी आए हैं। एंड नाउ दे आर ऑन टू द साइड्स राउंड। यूटिलिटी भी अच्छी नजर आ रही, गन्स भी अच्छी नजर आ रही है हमें। But obviously, Ultras, I think we will be resuming the game very shortly, and I hope कि हमें गेम दोबारा नजर आते हुए नजर। थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, but obviously this is the part of online tournaments। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ मसला कर जाती है, और sometime कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ब्रेक कर जाता है जो आपको समझ भी नहीं आती क्या हो गया। So I really hope we are resolved with these issues once and for all, और जो एक मोमेंटम बना हुआ है हम उसको कंटिन्यू कर सकें। मैं बहुत बेताब हूं इस चीज़ के लिए। डेफिनेटली मैं भी, आई मीन मैंने आई वुड से कि मेरे जो स्पेशलिटी ई स्पोर्ट्स है वो तो डोटा ही है, जैसा कि आपको पता है। काफ़ी व्यूअर्स को भी शायद पता होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की भी टीम्स में कास्ट करते रहता हूँ। बट काउंटर स्ट्राइक में मैंने काफ़ी कास्ट कमेंटेट की भी है मामून सापरी के साथ। लेकिन मुझे ये बात आरजी, मुझे ये ज़रा बताओ कि जो जैसे इस टूर्नामेंट की कंपटीशन है वो भी डोटा वाले इवेंट की तरह ही है, बहुत ही आई वुड से टियर 2 लेवल या हाई लेवल कंपटीशन। I think it's a tier 2 level competition as well, जहाँ पे हमारे पास not exactly top teams from the world, but the best teams in a specific region जो मिडिल ईस्ट की रहती है वो खेलते हुए नजर आ रही हैं। तो this is the same kind of tournament with the same kind of format that is happening, and वही कुछ नजर आता है। But look at that, the round वो हमारे पास काफ़ी हद तक टीम आरजीडब्ल्यू के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली बॉम्ब प्लांट करने के लिए बिल्कुल भी कोई गुंजाइश आरजीडब्ल्यू ने नहीं छोड़ी, और वो स्प्रे उजी का मैक 10 का स्प्रे 3 लोगों को उड़ाते हुए उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया था टीम फॉर ग्लोरी का, और फिर आखिर में कोई चांस नहीं था कि वो बॉम्ब प्लांट कर पाएँ। Exactly, and these are the important rounds as well। हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया था कि टीम आरजीडब्ल्यू के पास टीम फॉर ग्लोरी के पास मोमेंटम के ऊपर मोमेंटम बिल्ड कर रहा है, and अगर आरजीडब्ल्यू इज लुकिंग टू विन दिस गेम दे हैड टू डू समथिंग। द लास्ट राउंड दे डिड एग्जैक्टली दैट। फॉर्चुनेटली अगले राउंड की इकॉनमी नहीं, उनके पास गन्स एक ही प्ले के पास मौजूद है, वन इज गोना गो विद अ मैक 10 और बाकियों के पास पिस्टल्स ही रहेंगे। आरजीडब्ल्यू जो डेफिनेटली कीप ऑन द फैक्ट कि दे इनको ये गन्स नहीं हाथ से गंवानी, इनके काफ़ी प्लेयर्स के पास इकॉनमी बिल्कुल भी नहीं है। यू माइट नॉट बी एबल टू बाय द नेक्स्ट राउंड एज वेल, तो इस लिहाज से ख्याल से खेलना पड़ेगा। किया यही कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्मोक के थ्रू आउटसाइड ए उनको कोई किल मिल जाए, ताकि वो थोड़ा सा टीम फॉर ग्लोरी के लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर सके। डेफिनेटली, एंड आई थिंक ये 3 राउंड्स इन अ रो आरजीडब्ल्यू के पास जा रहे हैं, इकोनॉमी भी उनके हाथ में है। ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि वो राउंड हार नहीं सकते, या फिर ये कुछ गन जो हैं वो दूसरे अपोनेंट्स को दे नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक बात कमबैक की है, तो कमबैक तो वो काफ़ी अच्छा माउंट कर रहे हैं फॉर ग्लोरी के अगेंस्ट। Exactly. I think at the start of this map they didn't have an idea exactly T side को कैसे टैकल करना है, किस साइड को देखना है, whether it was the mid। लेकिन अब थोड़ी सी एग्रेसिव पिक्स लेते हुए भी नजर आए, मिड के ऊपर बाहर निकल के कंटेस्ट कर रहे हैं, और they are also winning their duels as well। तो देखते हैं exactly how does it turn out। तो बट आई होप the issue is also fixed so that we can get back to the game, और यही होता है कि हम गेम में वापस जाते हैं। बट टीम फॉर ग्लोरी के आखिरी प्लेयर रह चुके हैं जिनको स्पॉट कर लीजिए। रोमांटिक पैंडा गोज बैक टुवर्ड्स द मिड साइड, बॉम्ब ए के अंदर ही मौजूद है, और रोमांटिक पैंडा के पास ऑफ है टू कंटेस्ट इट। क्या इसको चेज किया जाएगा, और वही मेरे ख्याल में कहते हैं नज़ारे प्लेयर्स को ढूंढना भी चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लीव हिम विद एन ऑफ, और डेफिनेटली, और पीछे होते जा रहे हैं। टाइम इतना कम उसके पास बाकी है कि वो प्लांट तो कभी कर नहीं पाएगा एज लॉन्ग एज एक प्लेयर आरजीडब्ल्यू का जिंदा रहे। बट इट डजंट सीम लाइक वो पकड़ा जाएगा, और ऑप एटलीस्ट कैरी ओवर हो जाएगी, और बाकी टीम के पास इकॉनमी है इतनी कि वो 3 AKs मुझे नज़र आ रही हैं और एक गलील।
But this round is very important. अब हमारे पास दोनों तरफ से पूरी गन्स आ चुकी हैं and finally we can see the game as well and I hope मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि हमें दोबारा कोई टेक्निकल इशू ना आता नजर आए and I can see a full fledged round. हमारे पास मिड की तरफ से स्मोक कर दिए गए टी साइड को and they cannot push through. एक प्लेयर थोड़ा सा aggressive होते हुए नजर आ रहे हैं. Oh, he's crossed the head as well. Takes the shot. He waited for it. Unfortunately for MN, उनको सर नजर नहीं आया था. Gives a huge advantage to RGW. डेफिनेटली एंड एक किल तो टीम फॉरग्लोरी हासिल कर लेते हैं बट एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि उनके 3-4 प्लेयर एक्चुअली उड़ गए हैं, सिर्फ एक ही बचे हुए हैं और उसके पास अनफॉर्चुनेटली एक गलील है, सबसे कमज़ोर गन K1AA के पास, और कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा उनके पास. मैप कंट्रोल पूरा RGW के पास है, बॉम्ब साइज दोनों कवर हुई हुई हैं, एक प्लेयर ए पे बैठा हुआ है और K1AA जो है अपने वापस टी स्पॉन की तरफ जा रहे हैं, शायद दूसरी तरफ रोटेट करने की तरफ सोचें वो, लेकिन अगेंस्ट 4 प्लेयर्स काफ़ी मुश्किल है. और इस राउंड में टीम फॉरग्लोरी ने अपनी ऑप भी जो बहुत मुश्किलों से लास्ट राउंड में उन्हें हासिल की थी वो भी घुमा दी. तो डेफिनेटली इस राउंड के बाद तो एक इवन 5-5 स्कोर नज़र आएगा हमें और 5 राउंड्स इन अ रो RGW की तरफ से. Exactly. और अब मसला एक और रहता है कि अगले राउंड के अंदर as we discussed और अब मसला एक और रहता है कि अगले राउंड के अंदर as we discussed ओके डॉट्स को आराम से खून से ढूंढते आहिस्ता आहिस्ता स्पॉट कर लेते किया कि आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड एज वेल, जहां पे बी की तरफ देखते थे एंड ही वाज नॉट एबल टू सेव द गन और डू एनी काइंड ऑफ डैमेज ऑन द अदर साइड. RGW लुकिंग सुपर कंफर्टेबल राइट नाउ और अब इनके पास 2 AKs एंड ऑब्वियसली 2 यहाँ पे M4s एंड ऑप रहेगी एंड ऑप इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट की फैक्टर एज फॉर टीम फॉर ग्लोरी. हमें टेक 9 नजर आएंगे सो दे माइट बी रशिंग इन टुवर्ड्स वन साइड. तो इस कम इकोनॉमी का डेफिनेटली इनको अंदाजा होगा कि इस तरह से रहते हैं, बट 4 प्लेयर्स हमारे पास मिड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू द स्मोक पुशिंग इन, माइट बी कंटेस्टिंग डबल डोज एंड यस एग्जैक्टली RGW they have to keep it up as well. यहाँ पे म्यूजिक को पहली शो किल मिल जाएगी और मोलोटॉव से उन्होंने बाकियों को पुश ऑफ किया हुआ है एंड दे आर जस्ट चार्जिंग इन एज वेल. और वही बात है कि एक प्लेयर पीछे की तरफ से आते हैं, MN को किल मिल जाएगी, डॉट्स गेट्स 2 kills, MN को भी सेकंड किल मिल जाएगी, रॉबिन हुड इज एबल टू टेक द थर्ड प्लेयर आउट इन द इनसाइड द साइट, बट अब इट्स गोइंग टू बी अ 1v2 और वही बात सॉस इज जस्ट गोइंग टू बी टू गुड विद एन ऑप. और जो हम ऑप की डिस्कशन कर रहे थे whether it can work or not, the answer is going to be big yes. डेफिनेटली काफ़ी टीम फॉरग्लोरी का आई गेस आइडिया काफ़ी अच्छा था टेक 9s लेकर SMGs लेकर बी रश करने का, लेकिन वो इंसेंडियरी ग्रेनेड ने उनको रोक दिया गया उनके ट्रैक्स में. और अब 6-5 इकोनॉमी तो दोनों के पास है आखिरी राउंड के लिए, 4 AK-47s एक ऑप, बट क्या ये रिपीट होगा लास्ट टाइम का वो भी देखा जाएगा. एक खूबसूरत कमबैक डेफिनेटली और रोमांटिक पैटर्न के सामने एक प्लेयर बाहर पीक लेते हैं, टेक्स जंप पिक एज वेल, लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं. ही माइट जस्ट बी लुकिंग एट द राइट टू विन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉट नहीं ले पाते. ही वाज कंफर्टेबल इन दैट एंगल, लेकिन ही जस्ट विद दैट वन डॉट्स यहां पे जंप करके देखना चाहते हैं कोई ना कोई प्लेयर पुश कर, हाथ में यहां पे स्मोक लेके बैठे हैं कि बी का पुश ना आ जाए. बट फॉर नाउ सारी की सारी टीम टीम फॉर ग्लोरी इज स्प्रेड आउट ऑन द मैप. एक मिड एक तरफ जाते हुए नजर, दे आर ट्राइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ किल बिफोर दे हिट अ साइड और बॉम्ब अभी छोड़ा जा चुका है. ए नीड्स टू बी केयरफुल. रॉबिन हुड आगे तक जाते हैं बट 2 प्लेयर्स इधर ऑलरेडी मौजूद है. गोइंग टू बी 2v2. ओह नाइस, रॉबिन हुड ने 2 किल एक्चुअली निकाल रही हैं और उन्होंने साइट ओपन कर दी है, ए साइट पूरी की पूरी अपनी टीम के लिए. लेकिन वो टीम क्या पहुंच पाएगी? क्रिप्टॉन अभी फ़िलहाल एक ऑप के अगेंस्ट है. उनका आखिरी प्लेयर जो जिसके पास बॉम्ब है वो अपनी वो बॉम्ब लेकर जा तो रहा है एक की तरफ, लेकिन अगेन उसके अगेंस्ट भी एक प्लेयर है. ऑफ शॉट मिस हो जाता है, क्रिप्टॉन ने किल ले लेते हैं, लेकिन MN फॉल्स एज वेल. बट 1v3 सिनेरियो के में वो क्या ही कर लेंगे, बॉम्ब टेररिस्ट के हाथ में है. And Vita takes up as well, लेकिन Krypton with the flash Robin Hood के साथ यहाँ पे eliminate कर जाएंगे and it's going to be an equalizer जो 6-6 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है. Despite the fact कि हमारे पास टीम for RGW ये राउंड हारते हुए नजर आ रही थी, they had a wonderful comeback in this half. जिस तरह शुरू हुई थी it looked like टीम for glory में आगे ही जाते हुए नजर आएंगे और इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, but fortunately for them इसी तरह टीम
RGW they bounced back in a wonderful way, back to back 4 राउंड सिक्योर किए हैं और यहाँ पे जो स्कोर लाइन है वो बिल्कुल इक्वलाइज करके इन्होंने अभी शिफ्ट किया, बट अब यहाँ पे व्हाइल बीइंग ऑन द टी साइड टीम RGW ये अब यहाँ पे गोइंग टू गो टुवर्ड्स द ए साइड, कोई आवाज नहीं दे रहे। ओ ये क्या ये पीक सक्सेसफुल होगी? ओह एक्चुअली हाँ बिल्कुल 2 हेडशॉट से टीम फॉर ग्लोरी के 2 प्लेयर चल चुके हैं, लेकिन वो RGW के 3 प्लेयर एक्चुअली निकल चुके हैं। टीम फॉर ग्लोरी ने अपनी यूएसपी का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल करते हुए RGW के 3 प्लेयर को निकाल दिया है और अब RGS का नाम क्या है? मैं नाम प्रोनाउंस करने वाला था लेकिन समझ नहीं आया मुझे। I call him Saucery. I call him Sairi. देखें, if there's a good thing. If we keep if we pronounce his name wrong, I think we can blame it on him. The fact है इसका नाम मुश्किल रखा हुआ है. But in his defense, I think वो जहाँ पे होगा उधर वो नाम आराम से pronounce कर दिया जाएगा. But for I think everybody should I apologize to everybody अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ. But I'm gonna call him Sauce. Is that right? Sauce is a good. It's a good name. Sauce. We can go with Sauce. I think Sauce, that will be great. तो मिस्टर सॉस का आखिरी व्यू पॉइंट हमें नज़र आया था एंड इफ़ थिंग्स गो जिस तरह से पहले हाफ में गई थी तो ये राउंड भी टीम फॉर ग्लोरी की तरफ जा रहा होगा और उसके साथ साथ दूसरा राउंड भी वो सिक्योर करने में उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कंसिडरिंग कि ये काफ़ी इवन 6-6 चल रहा है। बिल्कुल, और आई थिंक मैं अब थोड़ा आगे जाके थोड़ा सीरियस हो गया बिकॉज आई वाज स्टिल स्टक ऑन द फैक्ट कि सॉस को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट इफ सॉस गेट्स अ किल, क्या हम उसको सॉसी कह सकते हैं? व्हाट्स अ सॉसी किल? कैन वी पुल ऑफ दैट समथिंग लाइक दैट? आई वांट सॉस टू गेट एन आई एम एस। स्टिल स्टक ऑन दैट। सॉस को एस होना चाहिए डेफिनेटली सॉस को एस, बल्कि हम आरजी हम बना सकते हैं, हम फॉर वन किल यू नो स्पैगेटी सॉस, लजानिया सॉस, white sauce, red sauce, it depends if double kill, triple kill, quad ace. Oh, that would be great. So for example, what is the most favored among public lasagna? Like कौन सा sauce सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? हम उसको 5 kill से associate कर सकते हैं and the flavor that is not liked by public that much we can associate 1 kill to it. लेकिन we are back into the game finally. हम team for glory को ये round भी मिल जाता है. Now they have the guns, but team RGW Esports उन्होंने they're gonna go with the buy और सॉस के पास यहाँ पे AKB रहती है तो it could be a good point for them. They're lining up outside B's. Flashes वगैरह किए जा रहे हैं. Sauce is just gonna be charging in. Eman को kill मिल जाएगी. They are not gonna be trading him out as well. So Osama takes a wide peek. लेकिन fortunately for Eman वो यहाँ पे eliminated but Vita just goes down with the SMG and with the Vita he is just too good. 2 kills लेते 30 को damage करते through the smoke and look at that. पलकते झपकते इनके पास पूरा का पूरा यहाँ पे साइड का कंट्रोल आ जाएगा. और आखिरी प्लेयर क्या ही कर लेंगे, वीटा ऑन अ ट्रिपल किल राइट नाउ। K1AA ने 1 किल तो निकाल लिया लेकिन वो 3 प्लेयर के अगेंस्ट उनकी पोजीशन भी नॉन है, हेल्थ भी नहीं है उनके पास और वो K1AA आखिर में फॉल करेंगे। दूसरा राउंड RGW की तरफ जाते हुए तो ये गेम काफ़ी इवन नज़र आ रही है हमें। फोर्स बाय डेफिनेटली उनके लिए वर्कआउट कर लिया और अब इकोनॉमी टीम फॉर ग्लोरी की इतनी अच्छी नहीं रही। Definitely RGW ने राउंड जिसका निकाला that was also very impressive despite the fact I think RGW ने एक प्लेयर को शुरू में लूज भी किया था. They still went on with the site और MN को वहाँ पे before the site was hit वो एक किल मिल जाती है but fortunately RGW के Vita he was proved to be a clutch but look at that दोबारा A साइड के ऊपर हिट किया जा रहा है. सारे के सारे प्लेयर्स there lining up outside A और जबकि A के अंदर भी दाखिल हो जाएगा थोड़ा सा फ्लैशेस वगैरह की जाती हैं but Dodge just with his Mac 10 just goes inside. थोड़ा सा रोमांटिक पैटा यहाँ पे कंटेस्ट करने की कोशिश करते हैं by taking 1 player डाउन लेकिन कुछ खास नहीं कर पाएंगे. इट्स जस्ट ब्लड बात जो RGW की तरफ से क्रिएट की जा रही है. Fortunately for them they were able to get 3 kills despite the fact उन्होंने यहाँ पे गन्स नहीं खरीदी थी but एक और राउंड हमारे पास RGW Esports की तरफ आ जाता है. हाँ ये RGW की तरफ से स्मोक प्ले और फिर कोऑर्डिनेटेड फ्लैशेस काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग साबित हुए फॉर ग्लोरी के लिए बिकॉज उनके पास कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं. तो उन्होंने साइड को एकदम ब्रूट फोर्स की तरह साइड का कंट्रोल हासिल कर लिया और फिर टीम फॉर ग्लोरी
काफ़ी पुश्ड आउट हो गई थी उस सिनेरियो से, डिस्पाइट कि कोई मोलोटॉव का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ प्योर स्मोक एंड फ्लैश प्ले और प्योर गन पावर के ज़रिए RGW ने राउंड हासिल कर लिया। और अब पूरी इकॉनमी उनकी तरफ है। एक ऑप भी नज़र आ रही है हमें, और टीम ForGlory के पास सिर्फ USP है। एग्जैक्टली, डॉट्स को रोमांटिक पैंडा क्लिप भी मिल जाती है। देयर ऑन टू द ए साइड एज वेल। रॉबिन हुड यहाँ पे किया कि मिलके बेटा को एलिमिनेट कर देते हैं। रॉबिन हुड किया, फिर मिलके को दूसरे प्लेयर को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। सॉस की तरफ से यहाँ पे शॉट लाइन किया, इट गेट्स मिस्ड एज वेल। दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा। रॉबिन हुड एक इजी किल बन जाएगी, एंड व्हाइल ही वाज कमिंग फ्रॉम द मिड साइड, इनको ये एक अच्छा एंगल भी मिल जाएगा। RCW फाइनली दे आर गेटिंग किल्स, और अनफॉर्चुनेटली इनको एक कुछ प्लेयर्स लूज भी कर बैठते हैं। दैट इज व्हाई वी सी नॉट ग्रेट इकॉनमी इन सम प्लेयर्स, लेकिन एक टीम ForGlory डिस्पाइट द फैक्ट उनको 2 राउंड्स में थोड़ा सा सेव करना पड़ा है। सिटी साइड इज ऑलवेज अ बिट हार्श ऑन द इकोनॉमी, तो उनको अब जाके गन राउंड देखने को मिलेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट राउंड, क्योंकि अगला राउंड उतना ही फिर मैं कहता हूँ सेव दोबारा करना पड़ जाएगा उनको। एज फॉर टीम RGW हमेशा साइड को हिट करते हुए नजर आए। दे नेवर एवर वेंट फॉर डिफॉल्ट। We can test कहते हैं, but Ayman यहाँ पे फ्लैश और स्मोक किया जाता है, और डॉर्स फ्लैश की मदद से अंदर दाखिल होते, टेक्स वन प्लेयर ऑन रॉबिन हुड विद अ वंडरफुल शॉट टू द बॉडी एंड हेड। यहाँ पे 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देंगे, बट समबडी डॉट्स की मदद से आगे म्यूनिक बढ़ते हैं, उनको फाइनली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दे हैव द कंट्रोल ऑफ द बी, लेकिन वो प्लांट के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज एक प्लेयर की HP कम और दूसरा ओके दे गो फॉर द प्लांट एज वेल। दे नीड टू बी केयरफुल, एक प्लेयर पीछे से भी आ रहा है, ऑब्वियसली दिस इज गोना हर्ट अ लॉट, बिकॉज उस एंगल को क्लियर तो थे ही नहीं था, बट एग्जैक्टली पता भी था कि क्रिप्टॉन कहाँ पे रहने वाले हैं। ही गेट्स द वन, ही गेट्स द सेकंड। म्यूनिक बाहर निकलने की कोशिश, म्यूनिक बाहर निकलने की कोशिश जरूर करते हैं, ट्राइंग टू कंटेस्ट इट, बट लेकिन क्रिप्टॉन के पास इजी 2 किल्स आ जाएंगे एंड दे गेट द राउंड एज वेल। काफ़ी क्रूशल राउंड था टीम ForGlory के लिए, बिकॉज उसके बाद उनकी इकॉनमी भी नहीं रहती, और फिर राउंड भी उनके लिए क्योंकि स्लिप अगेंस्ट होते रहते, 7-10 स्कोर होता। लेकिन रॉबिन हुड ने काफ़ी बहुत ही अच्छा होल्ड किया, और काफ़ी सरप्राइजिंग था RGW इतना अग्रेसिव पुश की तरफ गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट के उनके 2 प्लेयर फ्लैश हुए थे। खैर, रॉबिन हुड ने जो होल्ड किया था उसने इतना टाइम बाय कर लिया था कि बाकी टीम ForGlory के प्लेयर्स RGW को सराउंड कर लें, और काफ़ी हेस्टी प्लांट भी हमें नज़र आते हुए देखा था। परहैप्स वो उनको रियलाइज़ हो गया था कि राउंड शायद उनके हाथ से निकल चुका है, तो एटलीस्ट वो प्लांट का जो इकॉनमी बिल्डअप होती है उससे फ़ायदा उठाएं। बहरहाल 8-9 स्कोर अब हो गया है। मिड की तरफ पुश नज़र आ रहा है, बी साइड की तरफ पुश नज़र आ रहा है, बट क्या ये कामयाब होगा? डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी द बिगर क्वेश्चन। आराम से मिड की तरफ इंतजार कर रहे हैं, एक प्लेयर लर्क करते हुए थोड़ा ए की तरफ जा रहे हैं, ट्राइंग टू गेट समथिंग ऑन द अदर साइड, लेकिन जहाँ पे देख रहे हैं टीम ForGlory वो सारे के सारे साइड से खेलते नजर आए। बीटा के बिल्कुल यूटिलिटी भी इस्तेमाल की जाती है, एक ऑप है जो उनका इंतजार कर रही है फ्रॉम द अदर साइड, इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और अगर वो ऑप को स्मोक ऑफ कर दिया जाए, फ्लैश कर दिया, दैट कुड बी एन इजी एंट्री, बट ऑब्वियसली रोमांटिक पार्टनर सामो को एलिमिनेट कर दे, टेक्स अ पीक, और अब स्मोक ऑफ करने का इतना खास फायदा नहीं होता, बिकॉज रोमांटिक पार्टनर डिड एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू डू, और अब यहाँ पे ए साइड को हिट तो करना चाहते हैं, बट द एंट्रेंस फ्रॉम मिड वो भी स्मोक ऑफ कर दी जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल कोशिश की जाएगी, नेट से थोड़ी देर स्मोक को डिसिपेट किया जा सके, सो दैट ही कैन टेक अ पिक। आई वांट टू सी एग्जैक्टली इफ दैट हैपेंस देन कैन ही गेट एनीथिंग, लेकिन ये स्मोक के जाने के हटने के बावजूद आई थिंक इनको कोई क्लियर पिक नहीं मिलेगी। RCW स्टिल ट्राइंग टू मेक श्योर कि उनको कुछ मिल जाए, बट लुक एट दैट, आई थॉट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर देम, डेफिनेटली सडनली ये सारे प्लेयर्स काइंड ऑफ क्लम्प्ड अप हुए थे, और काफ़ी उनके बैकलाइन जो थी वो काफ़ी वल्नरेबल थी, लेकिन RGW समहाउ उन्होंने टर्न अराउंड कर लिया। बॉम्ब भी प्लांट हुआ है, टीम ForGlory हैं तो दोनों बाहर की तरफ, दोनों डिफरेंट एंगल से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो RGW ने पोजीशन अपनी अपनाई हुई है इसके अगेंस्ट लड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो हम देखेंगे कि रॉबिन हुड और उनका टीममेट सेव की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली एक 2 प्लेयर सेव करना सही साबित हो सकता है, बिकॉज एक तीसरे प्लेयर के पास इकोनॉमी तो है 3300 किसी का डॉलर्स बोलें या जो भी बोलें, लेकिन वो तो है उनके पास। और एमएन 2 एग्जिट किल्स देते हुए PKR पीके गो फॉर PKR 300 रुपए that would have been, that sounds fun, that sounds like oh ठीक है, इसका 50 रुपए रह चुके हैं पीछे, but yes that worked off really great। obviously आप 3 प्लेयर के पास they have great guns and utility भी अच्छी रहने वाली है, सिर्फ एक ऑपर के पास नीड रहेगा, and we are not
sad with the fact, but obviously it gives them a good point to contest. Osama unfortunately को eliminate कर देंगे despite the fact उनके एक प्ले के बाद आती है. But look at that, they're just going into the model thing, थोड़ा damage भी लेते क्या एक प्लेयर को eliminate कर देते, दूसरा प्लेयर टॉस मिलके उनको eliminate कर दिया जाएगा. बाकी प्लेयर अंदर की तरफ आते हैं. Robin Hood is able to take one down. Can he take the second one as well? There's a lot of damage to Osama, लेकिन he finally goes down. A side का कंट्रोल काफी हद तक इनके पास आ चुका है, बट वन प्लेयर्स पीछे की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं. स्मोक रहने वाली है इनके पास. They still have a lot गुड अमाउंट ऑफ यूटिलिटी टू प्ले और उस प्लेयर को कहीं ना कहीं बाहर निकाला जा सकता है. रोमांटिक पांडा इज होपिंग फॉर समबडी टू टेक अ पीक, लेकिन कोई भी नहीं वहां पे मौजूद. बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है. बीटा आप पीक लेते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे. And Ayman, he takes the first kill. So Sauce पीछे की तरफ से आएंगे. He could have taken the kill, Ayman, but उसामा ने मौका ही नहीं दिया था कि उस पीछे की तरफ से आने का कोई खास फायदा हुआ जाए. And now Romantic Panda के पास ऑप मौजूद है. That push cannot be easy और यही करेंगे, शायद इंतजार करेंगे किल मिलने का, बाहर निकलने का. किट भी इनके पास मौजूद नहीं है, so this is done. And he's just waiting for a kill to get away. And वो भी हुआ, kill भी नहीं मिलती. He's just trying to run away. And team RGW don't want to give that kill as well. Because spot के shots land की जाएंगी. 1 or 2 more shots to the body. He might be done. Peek लेना चाहेंगे. और सॉस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा. लेकिन छुपना चाहते थे. उसामा को छुपने भी नहीं देंगे. डेफिनेटली आई थिंक वो आखिरी किल अगर वो एग्जिट किल ले लेते तो उनके लिए वर्थ इट होता. लेकिन 1v2 सिनेरियो ऑप के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, पर्टिकुलरली जब आपकी पोजीशन भी नॉन हो, कोई वेपन नहीं आसपास पड़ा हुआ आपको उठाने के लिए. लेकिन ये जो RGW, हाँ किट भी नहीं थी उनके पास. और ये जो RGW की प्योर ब्रूट फोर्स एग्रेशन जो हम देखते हैं, ये काफ़ी डेंजरस साबित होती है अक्सर. Exactly, but look at that team. RGW feel like more like pub. यहाँ पे players उठते हैं, mid को ऊपर जाते हैं, Tex 9s लेते हैं, they just charge up and take control of mid as well. Fortunately for that team, Glory के पास भी यहाँ पे weapon नहीं रहता. RGW के बाद पता है they are on their way to a solid 2-0. Bomb plant हो चुका है. Retake बहुत मुश्किल हो चुका है. Player को spot shot land की जाएंगे, is able to get one player down with a beautiful headshot. Vita आगे बढ़ते हैं, kill लेना चाहते हैं. Look at that, he's just too good. And मैं क्या कहता है कि उनकी तरफ से सिर्फ अच्छा गया, but उसामा की तरफ से भी काफी डैमेज डील किया जाता है बाकी प्लेयर्स को. But Vita with his SMG and with his AK pistol, he was great. और पूरी टीम की तरफ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन नजर आ रही है. यू कुड सी के सारे प्लेयर्स डबल डिजिट हिट कर चुके हैं. दे हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज. 1200 से लेके 2000 के दरमियान ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज लाइंग डाउन. ग्रेट अमाउंट ऑफ असिस्ट एज वेल फ्रॉम आइदर साइड. सो पूरी की पूरी टीम RGW की, दे आर प्लेइंग ग्रेट. दे आर ऑन टू द मैच पॉइंट एज वेल, ऑन टू द सीरीज पॉइंट. वन मोर राउंड एंड इट्स गोइंग टू बी देम इन द प्लेऑफ्स. एक अच्छी ये इनकी सीरीज चल रही है अभी तक. डेफिनेटली. और RGW काफ़ी बेहतरीन एक तो कमबैक उन्होंने किया था इस मैच में. और दूसरी चीज़, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास अभी फायर पावर कम है टीम ForGlory के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी वो राउंड जीतते हुए नज़र आ रहे हैं. 3v2 सिनेरियो अब डेवलप हो गया है. एक के पास ऑफ है, रोमांटिक के पास ऑफ नज़र आ रही है. एक किल तो वो ले लेते हैं, लेकिन बॉम्ब प्लांट हो चुका है. और सॉस जो हैं वो साइड पे खड़े हुए थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए. और इन दी एंड वाइटा और माइजोम एक सीरीज़ को क्लोज ऑफ कर देंगे. Definitely, RGW, they have qualified to the playoffs. Congratulations to them, and it was a good contest from them. जहाँ पे अनूबस की गेम शुरू में उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही थी. Not just by 1 or 2 rounds, 5 से 6 राउंड्स की इनके पास, और दूसरी टीम के पास, टीम ForGlory के पास लीड रहती थी. वहाँ से बाउंस बैक करना और वहाँ पे आगे जाके खेलना, that was interesting, that was great to see. And they won. They made sure कि half sixes पे close हो, but उसके बाद while being on the T side हमेशा क्या उसका नाम है, हमेशा ये इन्होंने एक साइड को हिट किया है. एंड द वे दे टेकन दैट साइड हैज ऑलवेज बीन, एक मैं कहता हूं फैंटास्टिक. हमेशा दे वर एबल टू पुल इट ऑफ. कहीं ना कहीं किल्स के मामले में दे वर एबल टू टेक इट ऑल द वे, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द स्मोक और फ्लैशेस, बट उस वजह से बॉम्ब प्लांट किया था काफी. आई थिंक मे बी इट वाज वंस और ट्वाइस, आई माइट बी रॉन्ग, मेरे ख्याल में कभी शायद ना किया हो. बट डिफॉल्ट की तरफ ये लोग नहीं गए. दे वर नॉट एग्जैक्टली फीलिंग द मैप आउट. बहुत सुकून से खेल रहे थे, कोई किल्स नहीं लेना चाह रहे थे. द एग्जीक्यूशन ऑन द साइट वाज इमैक्युलेट. And now we have the final scores in front of us, Talha. We have team RGW qualifying for the playoffs and they deserve it rightly so. पहले फाइनल में ये लोग एलिमिनेट हुए थे, उसके बाद एलिमिनेट हुए थे और they made sure कि अगली दफ़ा मंथली फाइनल्स तक ये लोग पहुंच सके. एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट, एंड जो ये चीज़ चाहते थे कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए, एंड दे हैव बीन एबल टू डू दैट.
But again, this was a wonderful day. It looked like कि जहाँ पे मैं कहता हूँ कि टीम फॉर ग्लोरी वी कुड हैव सीन अ थर्ड मैच जो कि एंशिएंट के ऊपर खेला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मिराज इनके हाथ से गया था, इट लुक लाइक अ वन साइडेड अफेयर. वी चेंज लाइक वी सॉ के थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ था. वी सॉ द फैक्ट कि यहाँ पे टीम फॉर ग्लोरी के पास एक अच्छा स्टार्ट मिला था. दे वर गेटिंग किल्स एज वेल. रॉबिन हुड, पांडा, दोनों की तरफ से एक अच्छी किल्स उनको हमें देखते हुए नजर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द मिड पार्ट ऑफ द गेम दे स्टार्टेड लूजिंग द कंट्रोल डिस्पाइट द फैक्ट जो एक दो राउंड्स इन्होंने हारे थे उसके बाद दे वर नेवर एबल टू बाउंस बैक एंड टीम आरजीडब्ल्यू केप्ट ऑन बिल्डिंग ऑन दैट फैक्ट. और खास तौर पे while being on the CT side in the second half their economy was not great after losing the pistol round, और उसकी वजह से वो चीज़ काफ़ी उनको हर्ट करते हुए नजर भी आई थी. But these are the highlights as well. and एमन की जो यहाँ पे 1v2 पुल ऑफ करना चाहे थे एंड दैट वाज ग्रेट फॉर द साइड ऑफ टीम आरजीडब्ल्यू. दो प्लेयर्स ने इकट्ठे पीक करवाई थी बट कुडंट टेक. वही वाली बात है, वो राउंड भी अपने नाम कर देते थे. डॉट्स की तरफ से एक बहुत अच्छी तरफ से गेम निकाली गई थी. वो एक साइड के अंदर ग्रेस करते हुए जाते थे. ही वाज जस्ट हैविंग फन विद समटाइम एसएमजी समटाइम्स एके, और हमेशा काफी मल्टीपल किल्स अपनी टीम को दिलवाते हुए नजर भी आए थे. बट नॉट जस्ट दैट, अगर देखा जाए टीम फॉर ग्लोरी यही वो टाइम था जहाँ पे लोग जाते नजर आए थे एंड दे वर ट्राइंग टू गेट ऑल द वे इन एंड दे बिल्ट ऑन द फैक्ट कि इनकी इकोनॉमी अच्छी थी. दे वर टेकिंग दिस फाइट्स डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पास सॉरी इस बात के ऊपर कि इनके पास इकॉनमी अच्छी रहने वाली थी. दैट वाज द राउंड वेयर टीम बाउंस्ड बैक बट वीटा एंड द वे दे गॉट इनटू द ए एंड कंटेस्टेड में दैट वाज इंप्रेसिव. और वीटा या डॉल्स हमेशा हमें एसएमजी के साथ एक अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते थे एंड दे नेवर गेव अ चांस टू द फैक्ट कि अगली जो टीम रहने वाली थी, खास तौर पे मैं कहता हूँ टीम फॉर ग्लोरी, उनको सेकेंड हाफ के अंदर एक स्टेप एक मैं कहता हूँ एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिसके ऊपर वो खड़े हो सके. दे नेवर अलाउड टीम फॉर ग्लोरी टू बिल्ड दैट प्लेटफॉर्म इन द सेकंड हाफ. एक ही राउंड मिला था जिसमें वो जीते थे. दे वर एबल टू सिक्योर इन द नेक्स्ट राउंड बट टीम आरजीडब्ल्यू स्क्रैच इट राइट एंड देयर वाज अ पॉज. और उसके बाद इट वाज ऑलवेज लाइक इनके पास गन्स नहीं, इनके पास इकोनॉमी नहीं, ओ दे आर लूजिंग हियर, दे आर लूजिंग देयर एंड आरजीडब्ल्यू वाज लाइक ओ वेल गुड फॉर अस क्योंकि हम तो एसएमजीज के साथ एक दो प्लेयर्स भेज रहे हैं. विल टेक द साइड फॉर अस, विल जस्ट कंटेस्ट एट मिड एज वेल and it was looked easy for them in the second half. डेफिनेटली आई थिंक टीम आरजीडब्ल्यू की जो ब्रूट फोर्स पुश होती थी वो काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से साइड को लेते थे. एकदम कोऑर्डिनेटेड फ्लैशेस थे, कोऑर्डिनेटेड स्मोक्स थे, इंसेंडरी और फिर मोलोटॉव्स होते थे. वो बिल्कुल फ्लश आउट कर देते थे टीम फॉर ग्लोरी को. और ऐसा सिनेरियो डेवलप होता था कि फॉर ग्लोरी कि या तो फॉरन से ही 2-3 प्लेयर्स यूज हो जाएं. एक दफ़ा हमने देखा था कि रोमांटिक पांडा जो था उसने सही से होल्ड कर लिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर राउंड्स में सेकंड हाफ में पर्टिकुलरली वो ये नहीं कर पाए थे. फर्स्ट हाफ में टीम फॉर ग्लोरी ने फिर भी अच्छा खेला था लेकिन वो काफ़ी नहीं था बिकॉज इन द एंड टीम आरजीडब्ल्यू ने 5 राउंड का कमबैक तो एटलीस्ट किया था उनके अगेंस्ट. और इवन आखिरी राउंड में भी जब टीम फॉर ग्लोरी ने वो सिक्योर किया था वो भी आरजीडब्ल्यू की तरफ जा रहा था. सरप्राइजिंग चीज़ मेरे लिए ये थी कि आरजीडब्ल्यू उन सिनेरियोज में अहेड आए थे जिन सिनेरियोज में उनको जीतना नहीं चाहिए था वो राउंड. फॉर एग्जांपल वो 1 मैन डाउन या 2 मैन डाउन होते थे, पोजीशन भी उनकी बुरी होती थी लेकिन वो फिर भी राउंड फिर भी जीत जाते थे. तो वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी. डेफिनेटली आई थिंक वो ये राउंड जीते हुए नजर, दैट वाज इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल. खास तौर पे द वे दे वर चेंजिंग सम थिंग्स, मुझे लगता था कि व्हाइल इट वाज टीम फॉर ग्लोरी कि अगर हम देखा जाए तो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आरजीडब्ल्यू कि हम एग्जैक्टली करें क्या और व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग. शुड वो गो फॉर द फैक्ट कि हम एक दो प्लेयर्स छोड़ते हैं साइड के अंदर, एक प्लेयर मिड छोड़ते हैं, दो प्लेयर्स हम दूसरी साइड पे छोड़ते हैं एंड विल ट्राई टू कंटेस्ट दैट फैक्ट. अदर देन द फैक्ट कि हमेशा ही होता था कि it would have been it would have been a fact कि आपके पास या कोई प्लेयर को इनको रिस्पॉन्स नहीं अच्छा दे पा रहे थे. we were coming in with SMGs, ट्रेड्स होते थे. इट्स अ 3v3 विद द फैक्ट कि अब साइड का कंट्रोल उनके पास है. रीटेक में मेरे ख्याल में इनके पास यूटिलिटी नहीं रहती, इनके पास स्मोक्स नहीं रहते थे एंड दे वर नॉट दैट फेवरेबल एज वेल. कोई एक तरफ से इनके पास एक आई थिंक एक राउंड ऐसा था जहाँ पे इन्होंने 2 किल्स एक प्ले की वजह से ले पाए थे एंड दे वर एबल टू टेक द साइड बैक. क्रिप्टॉन, ही वाज द फैक्ट ही वाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, यस फ्लैंक एंगल से आके उन्होंने 2 प्लेयर्स एलिमिनेट किए थे. दैट वाज द राउंड दे वन. बट अदर देन द फैक्ट इवन इन द पोस्ट प्लान सिचुएशन दे ऑलवेज वर कमिंग फ्रॉम अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन वेदर इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी और नॉट. लेकिन स्कोर कार्ड हमारे सामने आ चुका है and let's see exactly how it turned out and I'm quite sure जहाँ पे आरजीडब्ल्यू की बात करें तो all of the team had a wonderful contribution to the score.
डेफिनेटली एंड आई एम ग्लैड कि सॉस हमारे जो हैं वो 20 किल हायर स्कोर बुक पे वीटा सरप्राइजिंग जैसी चीज़ ऐसे उसने काफ़ी राउंड विनिंग प्लेज किए थे, पर्टिकुलरली वो जो ट्रिपल किल उन्होंने उठाई थी, लेकिन इन दी एंड वो स्कोर बोर्ड के अपनी टीम में सबसे आखिर में 13 किल्स है, बट डेफिनेटली टीम कंट्रीब्यूशन या इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वीटा का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। बट ऑन दी अदर साइड टीम फॉर ग्लोरी जो थी वो अगेन रॉबिन हुड सरप्राइजिंग इस चीज़ नहीं है, बिकॉज रॉबिन हुड ने काफ़ी अच्छा खेला उसमें, और बाकी काफ़ी side, so I hope you guys forgive us for the trouble that we have caused you. लेकिन हमारे पास ये टूर्नामेंट रोड मैप भी आ चुका है जहाँ पे हम मंथली वी आर डन विद मंथली फाइनल्स 2, एंड वही हम पहले बात कर रहे थे कि इनका दे वर प्लेइंग इन द मंथली फाइनल एज वेल बट दे कुड नॉट क्वालिफाई. All right, guys, we are back. So चलते हैं first issues आ रहे हैं. Maybe viewers issue, somebody else issue. Before आ रहे हैं, I hope like you guys forgive us. But yes, we are done with monthly finals 2 guys, और हम playoffs में ये team RGW qualify कर चुकी है. We are left with only 2 more qualifiers. और उसके बाद we'll be heading into playoffs. One good thing is we have a lot of CS2 left, lot of Dota left as well. जिस तरह कि आपको पता होगा, आप तो कास्ट भी कर रहे हैं Arena Esports से Cup in Dota. तो we have a lot of wonderful games waiting for us. लेकिन एक चीज़ के ऊपर मैंने फिर दोबारा ट्वीट करना चाहता हूँ, दैट इज RGW एंड देयर जर्नी के मंथली फाइनल से काम नहीं चला था, तो उन्होंने मंथली फाइनल नंबर 2 के अंदर आके कोशिश की थी, एंड गुड फॉर्चुनेटली फॉर देम अब वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी. ओह, ये मुझे एक्चुअली नहीं पता था, उन्होंने पहला वाला भी खेला था. दैट्स इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये आरजी हमने जब वैलोरेंट भी कास्ट की थी तो इसी तरह हमें कैलिक्स कप में है दिखा था कि टीम्स एक तरफ से नहीं, फिर ट्राई एंड ट्राई अगेन वाली स्ट्रेटजी, एंड आई एम ग्लैड कि RGW के लिए ये वर्कआउट कर गया. I think this is the basic rule of any game that you're playing, that you need to make sure कि you learn from the mistakes as well. लेकिन प्राइस पूल को बताते चले the way ये टीमों ने ये प्राइस पूल जीते हुए नजर आएंगे. क्वालिफायर्स का जो नंबर 1 के ऊपर क्वालिफायर में आएगा वो $1200 जीतेगा, नंबर $650 जीतेगा, नंबर 2 के ऊपर जाएगा तो $300 मिलेंगे, नंबर 3 पे $150, नंबर 4 पे $100 मिलेंगे, एंड $950 हमें कैश की सूरत में मिलेगा, $250 ऑफ वर्थ ऑफ एरीना ई स्पोर्ट्स पॉइंट मिलेंगे जो आप मल्टीपल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. टोटल $1200 का प्राइस फुल रहने वाला है इन क्वालिफायर्स का. सो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी, बट अदर देन द फैक्ट कि ये सिर्फ प्राइस फुल रहता है, द बेटर थिंग इज कि हमारे पास जो ह्यूज प्राइस फुल रहने वाला है इस इवेंट का, इस पूरी सिचुएशन का, वो उसके लिए टीम RGW इज वन स्टेप क्लोजर. बट लेट मी रिमाइंड एवरीबॉडी के this is far from over. RGW need to improve better. वो जो आज गलतियां हुई हैं, जो राउंड्स हाथ से गए हैं, they need to look at those things कि what exactly went wrong, because playoffs is not gonna be easy as जिस टीम ने इनको हराया था वही playoff में qualify करके इंतजार भी कर रही होगी. तो sooner or later you're gonna face them again. So I hope आप वो वाला qualifier भी देख, finals भी देखें what exactly went wrong against that team, and you can look at this playoff as well. And I think team RGW and other team should look at the next qualifier as well, ताकि आपको और रिसर्च मिल सके टीम्स के ऊपर. डेफिनेटली आई थिंक ये काफ़ी कमबैक की अपॉर्चुनिटी होगी RGW के पास, और होपफुली वो स्टडी करने के बाद उनके पास एक बेहतर चांस होगा उनको फेस करने के लिए. लेकिन हमारे पास 2 और मंथली फाइनल रहते हैं, तो उनमें क्या कौन सी टीम आगे आती है, जाहिर सी बात है जो टीम क्वालिफाई करती है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम ही होती है. तो हो सकता है अभी इस टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स अभी तक सामने नहीं आया. Obviously that we still have to see, but ladies and gentlemen, ये this is from our side. इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले क्वालिफायर तक. उस वक्त तक ख्याल रखें. मैं था आरजे, मुझे ज्वाइन किया टल्टस ने इस वंडरफुल डे के लिए. हम दोनों को दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. I'm crazy.
just a jump, just a jump. Shivers my spine so bad. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what you really want us. My darling, in fire. My darling, rose in fire. You're a liar. You say, my darling, rose in fire. In fire. You say, my darling, rose in fire. You're a liar. Shivers my spine so cold, so swimming in the rivers, swimming in the rivers. I'm trying to let go of us, but you know that you really want Hello, it's been a long, long time. Can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin. I'm drowning. Heaven, can you save me now from these thoughts inside my head? God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and turn ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. Shadow, will you hold my hand when my demons come to take me? Gallows, try to kill the soul that I fought so hard to save. Hallowed by my love for you, always stop me going under. Follow every step I take, 'cause our walls are coming down. God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and turn ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. Stuck in the back of my head and I'm dead. I got the devil inside me and everything I see is red. Vision's blurry, I'm in a hurry, my skin is starting to shed quick. Call up a doctor, swallow
swallow some pills, maybe I'll wake up in bed. I'm a disaster, can I move faster? Honey, I'm over the edge. No point in stopping me, I'm not your property, gotta take care of my ledge. My friends are dead, I'm losing my head, I gotta get off of these meds. I am unstable, willing and able, give you this body to pledge. Oh my God, you are the devil.